بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کے ہسپتال پر جو قیامت ٹوٹی ہے، اس کے بعد جو صورتحال میں انتہائی کشیدگی آ گئی ہے، اس کے حوالے سے ہم تازہ ترین صورتحال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کیوں کی ہے اور اس جنگ کی آڑ میں شمالی غزہ کو خالی کروانے کی سازش کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بڑی ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین، اس کو آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس پورے خطے میں پچھلے 20-25 برسوں سے یہ جو پراکسی وار لڑی جا رہی ہے اور اسرائیل نے شام، لبنان اور غزہ میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اس کے پیچھے اصل سازش کیا ہے۔ ناظرین، غزہ کے جو الاہلی ہسپتال ہے وہاں بمباری سے 1000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی کر دیے گئے ہیں اور اتنا بڑا یہ نقصان ہوا ہے جس پر خود اسرائیل بھی بوکھلا گیا ہے اور اس نے اب یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا بلکہ اسلامک جہاد کا ایک راکٹ جو اسرائیل کی طرف داغا گیا تھا وہ راستے میں فنی خرابی کی وجہ سے اس ہسپتال پر گر گیا۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہاں کے وہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ راکٹ سے اتنا بڑا نہ گڑھا پڑ سکتا ہے اور اتنا ایک ہزار سے زیادہ افراد شہید اور زخمی ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی بم تھا، نان نیوکلیئر منی ایٹم بم اسے کہتے ہیں، MK-84 اس کا جو کوڈ نام ہے، اور 925 کلو گرام وزنی یہ بم تھا اور اس میں 429 کلو گرام بارود استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا مشہور بم ہے ناظرین، یہ افغانستان میں بھی گرایا جاتا رہا ہے اور عراق میں بھی، لیکن عام طور پر یہ شہری علاقوں پر نہیں گرایا جاتا۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ شہری علاقے پہ حملہ ہوا اور اس ہسپتال پر حملہ ہوا کہ جہاں پر نہ صرف بہت بڑے پیمانے پر خواتین اور بچے زیر علاج تھے بلکہ جو بہت سے سینکڑوں پناہ گزینوں نے بھی وہاں پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے کہ شاید یہ ہسپتال ہے، اس پر بمباری نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اتنا خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں اسرائیلی اور اس علاقے کو خالی کروانا چاہتے ہیں شمالی غزہ پورے کو، تو اسی لیے انہوں نے یہ قتل عام شروع کر رکھا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں کم و بیش 1500 بچے ہیں اور 1500 خواتین ہیں اور 11000 فلسطینی زخمی ہیں۔ اس بڑی تعداد میں بھی بچے اور خواتین کی زیادہ شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، لیکن اس حوالے سے جو اصل اس جنگ کے اندر جنگ کیا چل رہی ہے، وہ جھگڑا کیا ہے، وہ مال غنیمت کیا ہے جو 4500 ٹریلین ڈالر کا مال غنیمت ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے اور اس پر قبضے کے لیے کردستان سے لے کر شام، لبنان اور مصر، غزہ، اس سارے علاقے میں قیامت کیوں برپا ہے پچھلے 15-20 سال سے، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ کو اس تنازع کا اصل جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سب اشک شوئی ہے، یہ خود خوف و ہراس پھیلا کر اسرائیل اس ایریے کو خالی کروانا چاہتا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی ہجرت کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جو 22 لاکھ غزہ کے فلسطینی عوام ہیں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر جنوبی غزہ میں یا صحرائے سینا میں جو مصر کا علاقہ ہے وہاں آباد کیا جائے اور اس خطے کو خالی کروا لیا جائے۔ اسے خالی کیوں کروایا جا رہا ہے اور جنوبی لبنان کو خالی کروانے کی سازش کیوں کی گئی تھی اور حزب اللہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور شام میں جو داعش تشکیل دی گئی اور کردستان کی جو لڑائی چھیڑی گئی، وہ بھی سارا ایک پورا یہ خطہ ہے ناظرین۔ اور جو بحیرہ روم، مشرقی بحیرہ روم کے ارد گرد جتنے مسلم ممالک ہیں ان کے سامنے جو تیل اور گیس کے 460 ٹریلین ڈالر کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں پچھلے 15-20 سالوں کے دوران، یہ سارا ان پر قبضے کا معاملہ ہے اور اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کتنا خوفناک اور گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی اور یورپ کی کہ یہ اس وقت انہوں نے اس کھیل کو تیز کیا ہے جب دنیا میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور ایران جو اس خطے کی اس ایریا کی بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک اتحاد ہو گیا ہے اور نہ صرف پورا عالم اسلام اس دفعہ ایک پیج پر اکٹھا ہو رہا ہے بلکہ روس اور چین کی طرف سے بھی مکمل یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ اس بار عالم اسلام کو بھرپور مدد فراہم کی جائے گی اور ایک نیا بلاک تشکیل دیا جائے گا۔ آپ کو ہماری پرانی ویڈیوز میں یاد ہوگا کہ ہم آپ کو
उस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की पेशगोई करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि जिसमें रूस, चीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे जो इराक और शाम और दूसरे जो लबनान, ये ममालिक शामिल होंगे और यमन भी। तो ये बहुत खौफनाक अब मंजर पेश हो गया है और इस हवाले से जो जवाबी हिकमत अमली अब क्या बन रही है ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अमेरिका, इसराइल, भारत और नेटो ममालिक के अगले 30-40 सालों के मफादात हैं वो क्या हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस जंग में कत्ल व गारत की इंतहा क्यों की जा रही है ताकि कुछ इलाके खाली करवाए जाएं। नाज़रीन, ये लंबी चौड़ी प्लानिंग जो है ये पहले से की जा चुकी थी। अगर 7 अक्टूबर को हमास के जो हमले हुए हैं वो ना भी होते तो फिर किसी कोई नया बहाना बनाकर भी ये जंग छेड़ी जानी ही थी। अब जब आप ये पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जंग यूरोप क्यों लड़ना चाहता है, अमेरिका क्यों लड़ना चाहता है, इसराइल क्यों लड़ना चाहता है और जापान और इंडिया क्यों इस सारी जंग के पीछे हैं और इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये एक बड़ा महाज तश्कील पा गया है, पूरी दुनिया का आलमी महाज, तो चूंकि सारी जो लड़ाई है मुसलमानों को लूटने के लिए हो रही है और इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा मुसलमान ममालिक भी इकट्ठे हो गए हैं और उनके साथ जो दुनिया की दोनों बड़ी उभरती हुई कुव्वतें हैं, रूस और चीन, वो भी उन्होंने साथ देने का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से बहुत से मामला तय हो चुके हैं। इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से हम आपको बहुत पहले से खबरें देते आ रहे हैं। अब इन्होंने ये जंग कैसे लड़नी है और इस खित्ते पर कब्जे की जो अमेरिका, इसराइल, यूरोप और जापान और इंडिया कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब कैसे देना है, ये सारी तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम हस्बे मामूल अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं रिसर्च बेस्ड वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जो वाक़यात हैं, जो जुल्म व सितम हो रहा है उसकी खबरें तो आप पढ़ते रहते हैं और आप तक पहुँचती भी रहती हैं क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनल्स और अखबारात और सोशल मीडिया उसे साथ साथ दे रहा होता है। लेकिन जो उसकी गहराई है, जो उस जंग के अंदर जंग है, जो असल मामला है, जो माले गनीमत का, जो खरबों डॉलर के माले गनीमत का असल तनाज़ा है वो क्या है, जब वो आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपको अंदाज़ा लगाने में मुश्किल नहीं रहेगी कि ये जंग होनी ही होनी है, ये जंग टल नहीं सकती क्योंकि इतना बड़ा मामला है, इतने बहुत बड़े मफादात हैं और अगर वो ये जंग नहीं लड़ता तो उनका अपना मुस्तकबिल अंधेर हो जाता है। ये तफसील भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह यूरोप के लिए, जापान और इंडिया के लिए ये जंग लड़ना मजबूरी बन चुकी है और अगर उनकी मजबूरी है तो अब आलम इस्लाम की भी मजबूरी बन चुकी है। इसलिए ये जंग होनी ही होनी है। कभी ये तेज़ हो जाया करेगी, कभी ये हल्की हो जाया करेगी, लेकिन इसने रुकना नहीं है। इसीलिए अब नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन चुका है और आप देखेंगे कि बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत में भी और हिंदुस्तान की सियासत में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी क्योंकि इस खित्ते के बाकी तमाम ममालिक इसी नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक पर मुत्तहिद हो चुके हैं। अभी अगर गोमगो की सूरत हाल है तो वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है कि बज़ाहिर तो उन्होंने साहब जो मोदी सरकार है उन्होंने तो इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो बाकी सियासी जमातें हैं, कांग्रेस है और अपोजिशन है, वो इस फैसले के खिलाफ हैं। तो इसलिए जो अगले इंतखाबात भारत में आ रहे हैं 2024 में, उसमें बड़ा जो दंगल लगने की इत्तलात हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर उसमें जो अपोजिशन जमातें जीत गईं तो फिर ये जो वापस जो रूसी और चीनी ब्लॉक में भारत जा सकता है। नाज़रीन, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, जो असल रिसर्च बेस्ड वीडियोस हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल, यूरोप और भारत को अगले 30-40 वर्षों में जो एनर्जी बहरान है उसका सामना होगा क्योंकि जो तेल और गैस के ज़खायर हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकसीम इस तरह से किए हैं कि ये मशरकी बहीरा रूम से लेकर वस्ते एशिया तक ये जो पूरा इस्लामी ममालिक का खित्ता है उसमें फैले हुए हैं, जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर। नील के साहिल का आज बड़ी तफसील के साथ हम जिक्र करेंगे, यही मशरकी बहीरा रोम है। आप देख सकते हैं कि जो शायर मशरक थे उन्होंने 1 सदी पहले ये सारा मंजर देख लिया था। आपने फरमाया कि वो हादसा जो अभी
पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना अदराक में है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो बहुत पहले देख लेते हैं कि दुनिया के क्या हालात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी आप जानते हैं कि लोगों ने बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ की थी, लेकिन अब यकदम हालात में ठहराव आ गया है, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और जो कुछ बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये अब नहीं होगा, अब कुछ और होगा। इस हवाले से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो पाकिस्तान की सियासत और हिंदुस्तान की सियासत के हवाले से होगी कि उसमें क्या तब्दीलियाँ आएंगी। ये जो एक नई आलमी जंग छिड़ने जा रही है, इसे मिनी वर्ल्ड वॉर भी आप कह सकते हैं। नाज़रीन, रूस और चीन ने जो जवाब देने के लिए हिकमत अमली बनाई, उसकी वजह से जो ईरान है और जो सऊदी अरब है, उन्होंने अपने काफ़ी जो इख्तलाफात थे तवील वो ख़त्म कर दिए और एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो गए। आज जो इजलास हो रहा है OIC का, उसमें भी बड़े अहम फैसले होंगे, लेकिन असल जंग ये कैसे लड़ी जाएगी ये तफसील हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इस मौजूदा वीडियो में इस तनाज़े की जो जड़ है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन का जो महाज है वहाँ से ऐसी ऐसी खौफनाक खबरें आ रही हैं, यकीन करें कि दिल दहलता है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि खौफजदा हो जाता है देखने वाला। लेकिन अफसोस होता है हम उन मुसलमानों पर कि जो इस वक्त भी अपने ज़ाती मफादात के चक्करों में पड़े हुए हैं और जो कौमी मफादात हैं और आलम इस्लाम के और उम्मत के मफादात हैं, उनके लिए वो मुत्तहिद न होकर मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं जा रहे। और इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो गो मगो का शिकार है इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के हवाले से। नाज़रीन, हमास इसराइल जंग के वाक़यात तो आप इधर उधर से आपको पहुंच जाएंगे, इसीलिए ये तफसीली जो हकीकी पस मंज़र और पेश मंज़र है, जो अगला मंज़र होगा वो क्या होगा, वो इस वीडियो में हम तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। जो सूबा संक्यांक का दारुल हुकूमत है काशगर, वो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में बयान किया कि वस्ते एशिया का समझ लें कि वो आखिरी किनारा है जहाँ तक ये सारे तेल और गैस के ज़खायर बिखरे हुए हैं, और दूसरी तरफ जनूब मगरब में मिस्र का साहिल है। जिस तरह आपने फरमाया कि ताबखा के काशगर, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, ये सारा खित्ता वही है। नाज़रीन, वही यहीं पर एक सारा तनाज़ा है। कुदरत ने जो सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं इस खित्ते में रख दिए हैं, और यूरोप भी उससे महरूम है, जापान भी महरूम है, इंडिया भी महरूम है, चाइना भी महरूम है। यानी जो सनती तरक्की है जिन ममालिक में, वो उनकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है तेल और गैस, वो उनके पास नहीं है। ये कुदरत की तकसीम है ताकि वो इनके मोहताज रहें और आपस में कारोबार चलता रहे, कुछ ले कुछ लो कुछ दो पर। लेकिन ये जो ताकतें हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती से जंग के ज़रिए और इस खित्ते को ग़ुलाम बनाकर, हत्ता के भेड़ बकरियों की तरह वहाँ उन्हें जिला वतन करके उस खित्ते को कब्ज़ा करना चाहती हैं। यही सारा तनाज़ा है। और लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि जो आलम इस्लाम को समझ आ गई है, बेशक 40-50 साल जंगों और प्रॉक्सी वार्स का जो अजाब सहने के बाद समझ आई है, लेकिन समझ आ गई है। इसलिए इस बार जब अमेरिकी सदर ने राब्ता किया कि मैं आ रहा हूँ मशरिक़ वस्ता में, इसराइल का दौरा करूँगा, उसके बाद मैं उर्दन आऊँगा, और उर्दन में फिर उन्होंने मदऊ किया सऊदी अरब को, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, मिस्र को और एक दो और ममालिक को कि आप वहाँ पर आएँ और ताकि हम इस मामले को देखें कि अब हमने आगे कैसे चलना है। इसका सऊदी अरब ने और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने सिरे से बाइकाट ही कर दिया कि हमने आना ही नहीं है। इसके बावजूद मंसूबा था कि यह इजलास होगा जिसमें उर्दन, मिस्र की हुकूमतें शरीक होंगी और कोई लाहे अमल बनाया जाएगा कि किस तरह गज़ा से इनखला होगा और उन्हें फिर किस तरह सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन इसी दौरान खुदा की कुदरत देखिए कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया, हस्पताल पर हमले वाला, इतना 1000 से ज़्यादा जो शहादतें और ज़ख्मी हैं लोग, तो उसकी वजह से पूरे अरब में इतना कोहराम बर्पा हो गया कि उर्दन ने घबरा कर इस इजलास को ही मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आप यहाँ पर आएँ। खुद अमरीकी सदर ने भी मुनासिब नहीं समझा। तो ये हाल है कि 2-4 जो इत्तेहादी अमेरिका के आखिरी बचे हुए हैं वो भी उनके सदर से मुलाकात करने पर तैयार नहीं हो रहे। ये हालात हो गए हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, कुवैत है, सारा जो एरिया है यहाँ पर समझ लें कि अमरीकी अफवाज भी मौजूद हैं, इराक में भी मौजूद हैं, शाम में भी अड्डे हैं उनके। इस सारे खित्ते पे उनका कितना कंट्रोल था। और आज वो वक्त आ गया है कि इनके हुक्मरान अमरीकी सदर को खुश आमदीद कहने के लिए बल्कि उससे मुलाकात तक करने के लिए तैयार नहीं हैं और उस मुतबादल ब्लॉक की तरफ देख रहे हैं जिसमें चीन और रूस भी शामिल हैं। नाज़रीन,
रूस यूक्रेन जंग में आपने देखा होगा कि प्यूटन ने बड़ी शातिराना चाल चल के तेल और गैस की दौलत से माला माल उस इलाके पर कब्जा कर लिया। 2014 में क्रीमिया पर, जो जजीरा नमा क्रीमिया है, उस पर कब्जा कर लिया। और अब जो मौजूदा जंग है, इसके दौरान जो उस क्रीमिया के शुमाल में और जो बहीरा असवद ब्लैक सी है उसके शुमाल में एक बहीरा अजोफ है, उस पर कब्जा कर लिया। ये जो बहीरा अजोफ और क्रीमिया में तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर हैं, और जो मशरकी यूक्रेन है इसमें जुनूब मशरकी यूक्रेन तो बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। उनकी अब हम कुछ तफसील आपको बताते हैं कि बहीरा अजोफ में जो ज़खायर हैं उनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में उनकी जो तेल और गैस की जो मालियत बताई जा रही है। अमेरिका और नेटो ने पूरी कोशिश की, पूरा साल उन्होंने यूक्रेन को असला दिया और फौजी उनको तरबियत दी और इसको कहते हैं काउंटर ऑफेंसिव करवाया कि आप वहाँ तक पहुँचे, वापस अपने इलाके लें, ताकि फिर हम वहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन अब रूस की तरफ से की जाएगी तेल और गैस की, हम उसका रास्ता रोकें और वो हम खुद इस्तेमाल करें और यूरोप तक ये पहुँचाएँ ये तेल और गैस, क्योंकि वो शदीद बहरान है इस वक्त यूरोप में एनर्जी का। लेकिन रूसी फौज ने ज़ोरदार मुकाबला किया और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो वहाँ पर बर्फ़बारी इतनी होती है कि कोई बड़ा जारहाना पेशकदमी का मामला होता ही नहीं है। तो वहाँ से मायूस होकर अब आखिरी रास्ता यही रह गया है कि जो बहीरा रूम में दरियाफ्त हुए हैं पिछले 15-20 सालों के दौरान तेल और गैस के ज़खायर, अब उन पर कब्जा मुकम्मल किया जाए और उनको फिर इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि जो अगले 30-40 बरसों का जो ज़रूरत है यूरोप की उसे पूरा किया जाए, बल्कि उसकी ज़मानत मिल जाए। अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अरब ममालिक हैं वो तो अब उनके कंट्रोल में नहीं रहे, अब उन्हें इसलिए इस नए ज़ख़ीरे की बहुत शदीद ज़रूरत है। रूस से उनकी जंग चल रही है, तेल और गैस या यूक्रेन में था या रूस में था, जो यूक्रेन का था सारा वो भी रूस ने कब्जा कर लिया है, और जो बाकी तेल और गैस था सऊदी अरब में, ईरान में, मिस्र में, शाम में, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, इस इलाके में ये सारे भी बिगड़ गए हैं। इस तरह ये सूरत हाल बनी हुई है कि अब जो तेल की कीमतें हैं ना नाज़रीन, वो रूस और सऊदी अरब मिलकर तय कर रहे हैं। अब यहाँ तक सूरत हाल बनी हुई है, बहुत परेशान है यूरोप वाले भी और अमेरिका भी। इसलिए वो अब इंतहा उन्होंने कर दी है कि उन्होंने हर सूरत में मशरकी बहीरा रूम पर कब्जा करना है, वहाँ पर जो तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, ताकि उनको फिर एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो इसराइल से कब्रस, कब्रस से क्रीट और फिर इटली और यूनान तक जा रही है। तो ये सारा मामला है, इसकी तफसील भी अभी हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जंग असल में है क्या। नाज़रीन, सर्दियों में तो आपने हम बताया कि ये जो रूस और यूक्रेन की जंग थी, वहाँ से जब उन्होंने मायूस हो गया अमेरिका, तो अब उन्होंने मशरकी बहीरा रूम पे जो ये हमला किया है, उसमें अब उसकी हम आपको तफसील बताते हैं कि वहाँ पर वो जो माल गनीमत हमने लिखा है आपको और बताया है वो है क्या। नाज़रीन, ये जो ज़खायर हैं उनकी जो मजमूई मालियत है वो 4,500 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर है, जो गैस के ज़खायर हैं 4,500 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। जी नाज़रीन, 4,500 हम कह रहे हैं, सिर्फ 4.5 नहीं कह रहे, 4.5 ट्रिलियन नहीं, 4,500 ट्रिलियन। और जो क्यूबिक फिट भी नहीं, क्यूबिक मीटर। और ये जो नाज़रीन नहीं जानते उनके लिए हम अर्ज कर दें कि जो ट्रिलियन है वो खरब को कहते हैं। इतने बड़े ज़खायर हैं नाज़रीन, इतनी बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा, इसके साथ साथ फिर अरबों खरबों डॉलर मालियत के तेल के ज़खायर भी इनके साथ ही मौजूद हैं। आपको पता है जहाँ गैस होती है वहाँ तेल भी होता है, तो इसलिए इसकी मालियत का आप अंदाज़ा अभी फ़िलहाल लगा ही नहीं सकते कि इतना बहुत बड़ी दौलत पड़ी हुई है और उस दौलत पर यह कब्ज़े की जंग है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ये जो बेइंतहा दौलत है वो किन किन ममालिक के सामने पड़ी है समुंदर में। अब हम थोड़ी सी आपको उसकी तफसील जब बताएंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये जो 20-25 सालों से जंग लगी हुई है उसकी असल वजह तो ये है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं बताएगा नाज़रीन, क्योंकि उनके मफादात हुकूमतों से वाबस्ता हैं और हुकूमतों पर पाबंदी है कि वो सच ना बोलें और ना किसी को बोलने दें। नाज़रीन, 850 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर मिस्र के साहिलों के सामने हैं। जी जनाब, 850 ट्रिलियन
क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर मिस्र के साहिलों के सामने हैं। 750 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस गज़ा और इसराइल के साहिलों के सामने हैं। दरियाफ्त हो चुके हैं ये सारे, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो अभी दरियाफ्त नहीं हुए वो पता नहीं कितनी कीमती दौलत होगी मज़ीद। 200 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस लबनान के साहिलों के सामने है मशरकी बहिरा रूम में, और 200 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ही गैस शाम के साहिलों के सामने है। 300 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस तुर्की के साहिलों के सामने है। 500 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस कब्रस के साहिलों के सामने है, और 1600 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस शुमाली बहिरा रोम के बैनुल अक़वामी पानियों में है, जिसकी मिल्कियत पर तुर्की, शाम, यूनान और कब्रस के दरमियान और क्रीट के दरमियान जो एक जजीरा नुमा है उनके दरमियान झगड़ा चल रहा है। इस सारे एरिए में नाज़रीन ये अरबों खरबों रुपए मालियत का अरबों खरबों डॉलर की मालियत का तेल भी मौजूद है। इसराइल समेत यहाँ कुछ ममालिक ने तेल और गैस निकालना शुरू कर रखा है पिछले 10-15 सालों से, लेकिन ये ज़्यादातर ज़खायर जो हैं ये पिछले 20-25 सालों के अंदर ही दरियाफ्त हुए हैं, ये पुराने ज़खायर नहीं हैं। लेकिन जो इनके हवाले से एक्सप्लोरेशन है वो पिछले 10-15 सालों में शुरू हुई है, और कुछ गैस और तेल निकल रहा है और यूरोप में जा रहा है। नाज़रीन, ये जो 750 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर इसराइल और गज़ा के साहिलों के सामने हैं, उनका बड़ा हिस्सा या तो गज़ा के सामने है या फिर जनूबी लबनान के साहिल के करीब जो इसराइल का इलाका है, शुमाली इसराइल जिसे आप कह सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि इसराइल मुसलसल बमबारी और हमले करके इन इलाक़ों से फ़लस्तीनियों और लबनानियों का इनखला चाहता है। और पिछले 15-20 वर्षों के दौरान आपको याद होगा, बल्कि इससे भी पहले, साबरा और शतीला के कैंपों पर इसी तरह की बमबारी की गई थी जिस तरह आजकल गज़ा में है, जो जनूबी लबनान में थे, ताकि वो इसराइल की कोशिश थी कि वो जनूबी लबनान को भी हड़प कर ले और इसराइल में जम कर ले। और उसकी वजह यही तेल और गैस के ज़खायर हैं जो उस सरहद के बिल्कुल सामने हैं जहाँ पर सरहद जनूबी लबनान की और इसराइल की मिलती है। वहाँ तक तो वो आपको पता है कि फिर हिजबुल्लाह ने हिम्मत की और ईरान ने उसका साथ दिया और बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने। पहले फ़लस्तीनी अल-फतह लड़ती रही, लेकिन उनको तो इन्होंने काबू कर लिया था इसराइल वालों ने, लेकिन फिर हिजबुल्लाह ने हिम्मत की और जनूबी लबनान को आज़ाद करवा लिया। वहाँ से मायूस होकर अब आखिरी सहारा उनका यही था कि अब वो गज़ा के सामने जो ज़खायर हैं उन पर कब्ज़ा करें और उनकी एक्सप्लोरेशन शुरू करें, जो हमास उन्हें करने नहीं दे रही थी। नाज़रीन, गज़ा के साहिल के सामने जो ज़खायर हैं ना, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो भी कई ट्रिलियन डॉलर के हैं, और उनमें जो दो है ज़ख़ीरे हैं गज़ा के, जनूबी गज़ा के सामने है, शुमाली गज़ा के सामने, वो थोड़ा हटकर है जो गज़ा सिटी के सामने है। लेकिन जो शुमाली गज़ा है वो बिल्कुल एक ज़ख़ीरा ऐसा है कि जो बिल्कुल साहिल के ऊपर है, उसका कुछ हिस्सा खुश्की पर है और बाकी सारा समुंदर के अंदर है। तो इसलिए उस इलाके में एक्सप्लोरेशन करने के लिए अब ये इतने बड़े पैमाने पर इसराइल वो गज़ा सिटी को भी खाली करवाना चाहते हैं, और जो पूरा गज़ा की पट्टी का शुमाली हिस्सा है उसको भी खाली करवाना चाहते हैं। उन सब जो 10-15 लाख जो गज़ा के अब फ़लस्तीनी अवाम हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर या तो जनूबी गज़ा में नए पनाह गज़ीन कैंप बनाकर वहाँ रखना चाहते हैं, या फिर जो अमरीकी बहरी तैयारा बरदार बहरी बेड़े आए हुए हैं उनके ज़रिए उन्हें दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करेंगे, या फिर एक मंसूबा ये है कि जो सहराए सीना जो जनूबी गज़ा के साथ लगता है मिस्र का, वहाँ पर नई खैमा बस्तियाँ और ये बस्तियाँ तमीर की जाएँ और इन सब को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। ये इलाका चूँकि खाली हो जाएगा तो फिर ये तेल और गैस के जो तमाम ज़खायर हैं उनकी एक्सप्लोरेशन का ये हेडक्वार्टर बनेगा। ये सारा मामला है नाज़रीन। असल सूरत हाल आज हमने आपके साथ शेयर की है, और ये जो वहशियाना बमबारी कर रहे हैं, बाद में ये बेशक बहाने बनाए, ये जानबूझकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर ये कत्ल वार इसलिए कर रहे हैं ताकि खौफ व हरास फैले और लोग निकल जाएं। और इसीलिए आप देखें कि सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर 10 लाख यानी 11 लाख गज़ा सिटी की आबादी है, और इतनी तेज़ी से इनखला हुआ है कि इंसानी तारीख में इतना तेज़ रफ्तार इनखला नहीं हुआ। 10 लाख लोग
غزہ سٹی چھوڑ کر باہر نکل گئے ہیں اور صرف 1 لاکھ بچے ہوئے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو غزہ کے ہسپتال پر، پھر انہوں نے ہسپتال کو بھی نہیں چھوڑا تاکہ یہ بالکل سنسان ہو جائے، وہاں کوئی شخص نہ رہے، بلکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کو سول آبادی سے مکمل طور پر خالی کروا کر اور ہسپتالوں تک کو خالی کروا کر منصوبہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کو اندر داخل نہ ہونا پڑے. تو پھر یہ جو نان نیوکلیئر منی ایٹم بم امریکہ نے سپلائی کی ہیں، جن میں سے ایک گرایا گیا ہے، پھر ان بموں کی بارش کر کے اس کو بالکل تہس نہس کر دیا جائے تاکہ وہاں پر جو 30,000 حماس کے جو جنگجو ہیں انہیں باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملے. یہ ناظرین اتنا خوفناک کھیل کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے. اسی لیے عالم اسلام نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کے عزائم کتنے خوفناک ہیں. ناظرین، ایک منصوبہ اس دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بناتی ہیں اور ایک منصوبہ مالک کائنات اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. اور مشہور فریز ہے کہ مین پروپوز گاڈ ڈسپوز، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، کہ انسان منصوبہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے. ایک طرف مشرقی بحیرہ روم کے کھربوں ڈالر مالیت کے ذخائر نکلنے کا جو وقت آیا ہے، تو دوسری طرف دنیا میں طاقت کا جو توازن تھا، یونیپولر ورلڈ تھی، وہ طاقت کا توازن ختم ہو کر اب نیا طاقت کا توازن بن گیا ہے اور ایک نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا ہے. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ بائی پولر یعنی 2 قطبی نظام دوبارہ ہونے جا رہا ہے. اور اسرائیل، قبرص، کریٹ اور یونان نے مل کر اس دولت کو یورپ پہنچانے کے لیے سمندر اور خشکی میں 16 ارب ڈالر مالیت کی جو ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت پائپ لائن بچھانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پائپ لائن ہے، اس کے ذریعے 10 ارب کیوبک میٹر گیس ہر سال یورپ میں ٹرانسفر کی جائے گی اس علاقے سے. اور یہ جو اس کی پائپ لائن کی لمبائی ہے وہ 1900 کلومیٹر ہوگی، یعنی یہ اسرائیل سے شروع ہوگی، پھر یہ کریٹ تک جائے گی، قبرص، کریٹ اور یونان اور اٹلی، اور پھر اس سے آگے جائے گی. یعنی آدھی یہ پائپ لائن سمندر کے اندر بچھائی جائے گی اور جو آدھی ہے وہ خشکی پر ہوگی. یہ ناظرین صورتحال ہے. اور یہ جو بحیرہ روم کے جو ٹریلینز آف ڈالر کے ذخائر ہیں، پھر ان کے ذریعے اگلے 30-40 سالوں کے لیے یورپ کی ضروریات پوری کی جائیں گی تاکہ وہ نہ روس کا محتاج رہے اور نہ جو مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں وہ ان کا بھی محتاج نہ رہے. یہ اصل کہانی ہے ناظرین. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ نیٹو کی طاقت کی وجہ سے، اور قبرص اور کریٹ جو ہیں وہ بھی نیٹو کی طاقت کی وجہ سے وہ ایکسپلوریشن بھی کر رہے ہیں اور پائپ لائن بھی بچھا رہے ہیں. لیکن جب ترکی والے اور شام والے وہاں پر جا کے اپنے علاقے میں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں زبردستی وہاں سے روک دیا جاتا ہے. اس سارے کھیل میں ناظرین یہ جو مشرقی بحیرہ روم کا جو یہ ٹریلینز آف ڈالر کا مال غنیمت پڑا ہوا ہے، اس پر قبضے کے لیے جو سارا کھیل ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب یہ 4-5 ایسے اہم پوائنٹس ہیں ان پر کسی ایک طاقت کا غلبہ نہیں ہو جاتا. وہ ویڈیو کے آخر میں اب ہم آپ کو وہ پوائنٹس بتائیں گے تو پھر آپ کو یہ سارا کھیل سمجھ آ جائے گا کہ وہ کون سے علاقے ہیں. ان میں ناظرین جو 5 پوائنٹس ہیں ان میں سب سے جو شمال میں پہلا پوائنٹ ہے وہ مغربی کردستان کا علاقہ ہے، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کئی سالوں سے لڑائی جاری ہے، پراکسی وار جاری ہے اور امریکہ ان کی سپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ شام کا شہر حلب اور اس کا جو مغربی ساحلی علاقہ ہے وہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شام میں جو امریکہ نے داعش کھڑی کر کے وہاں پر ایک پراکسی وار شروع کی تھی اور خود امریکی فوج کا بھی وہاں پر اڈا ہے اور اسرائیل نے بھی وہاں پر بہت تباہی اور بربادی کی بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے. تو یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے جو مشرقی بحیرہ روم کی اس دولت پر قبضے کے لیے ضروری ہے. تیسرا پوائنٹ ناظرین جنوبی لبنان ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں پر جو قیامت برپا کی گئی تھی اس وقت سے لے کر اور پھر جو حزب اللہ کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد اور اب تک یہ معاملہ وہاں پر چل رہا ہے. یہاں پر بھی اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا تھا. یہ تیسرا اہم پوائنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ ناظرین غزہ ہے اور جہاں پر اس وقت قیامت برپا ہے. اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں. اور پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ نیل کا ساحل یعنی شمالی مصر ہے. تو ناظرین اب آپ کو کردستان، شام، جنوبی لبنان اور غزہ میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری پراکسی وار اور داعش کے قیام کی اصل حقیقت، اصل سائنس سمجھ آ گئی ہوگی. امریکہ، یورپ اور اسرائیل
मुसलमानों के इन इलाकों में मुसलसल खून की होली खेलकर और मिस्र में अखवानुल मुस्लिमून की जमहूरी हुकूमत का फ़ौज के ज़रिए तख्ता उल्टवा कर ये सारा खेल खेल रहे हैं। और जो अब्दुल फत्ताह अस-सीसी का मार्शल लॉ लगा इसीलिए, हालांकि वो बज़ाहिर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जमहूरी ममालिक हैं, उन्होंने मार्शल लॉ की हमायत कर रहे हैं इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पर मिस्र के साहिल के सामने साढ़े आठ हज़ार ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ज़खायर है नाज़रीन। और अवाम के जो मुंतखब लीडर थे मोहम्मद मुर्सी और उनके साथी हज़ारों लोगों को फांसियां देकर और सज़ाए मौत देकर जो मिस्र पर उन्होंने अपना कब्ज़ा मुकम्मल करवाया हुआ है, अपनी जो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट है जो मोहम्मद मुर्सी की, वो मुसल्लत की हुई है। लेकिन अब ज़रा का ये कहना है कि हालात इतने ख़राब हो रहे हैं कि मोहम्मद मुर्सी भी ये जो अब्दुल फत्ताह अस-सीसी हैं वो भी परेशान हैं कि क्या मैं अब प्रो अमेरिकन अपनी पॉलिसी जारी रखूं या जो ये इस्लामी ममालिक का और चीन और रूस का नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उसे ज्वाइन कर लूं, क्योंकि वो तन्हा रहकर तो अरब में ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सूडान भी उसी ग्रुप में शामिल है जिसमें सऊदी अरब शामिल है और जो यमन है और जो दूसरे ममालिक हैं और जो दूसरी प्रॉक्सीज़ हैं उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक या ईरान से है और या रूस से है। इसलिए मिस्र को भी बहुत से खदशात लाक हैं और ये भी हो सकता है कि मिस्र में भी किसी वक्त कोई मामला या खाना जंगी शुरू हो जाए। इसलिए सूरत हाल पूरे खित्ते की बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। नाज़रीन, जो मिस्र की मशरिक़ वस्ता की तीन बड़ी ताकतें हैं, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब, उनका एक पेज पर आ जाना और अमरीकी सदर के उर्दन के दौरे के दौरान जो 5 मुल्की सरबराह इजलास, जो मुजव्वज़ा उर्दन का आज दौरा था, वो 5 मुल्की जो मुजव्वज़ा सरबराह इजलास है जिस तरह हमने आपको पहले बताया उसका कैंसिल कर दिया जाना, ये सारे जो इशारे हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं कि इस बार जो मगरब है और अमेरिका है और इसराइल है और इंडिया है, इनको बड़ा सख्त मुज़ाहमत का सामना होगा। एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जवाबी समझ लें कि एक जवाबी आलमी क़ुव्वत तश्कील पा रही है अल्लाह के फजल व करम से। इसकी जो हम तफसील है वो हम अब, चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये जो जवाबी एक क़ुव्वत स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है इसकी सारी तफसील और इसकी हिकमत अमली अब क्या बन रही है और इस हवाले से क्या चल रहा है अंदर खाते, ये सारी तफसील अब हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि चीन, रूस, तुर्की, ईरान, इराक, शाम, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और अफ़गानिस्तान समेत खित्ते में जो ये नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान और भारत की सियासत में क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं आने वाले चंद महीनों या 1-2 सालों के दौरान, ये भी कल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इसराइल हमास जंग फैलने से तेल और गैस की कीमतें ख़ास तौर पर यूरोप में आसमान से बातें करने लग जाएंगी और जो महंगाई की एक नई लहर आएगी। हमारे यहाँ तो महंगाई है ही, लेकिन जो इस दफ़ा यूरोप में महंगाई आएगी उसकी भी हम कुछ तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और जो दुनिया इसकी वजह से तीसरी आलमी जंग का क्यों शिकार हो सकती है, ये भी अहम मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।